Hello everyone, we have seen the amino acids, their formation of peptide bond, types of amino acids, and how that amino acids join to form long chain of protein and different structures of proteins. Means we have covered more than half part of your proteins. This is the end part or the last part of your proteins, classification of proteins and the functions. So let's see the classification of proteins, how proteins are classified. तो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज शुगर्स, नॉन शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स. उसमें मोनो, डाई, पॉली और ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह अपन ने टाइप्स देखे थे, राइट. उसी तरीके से प्रोटीन्स के भी टाइप्स रहे, तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन. ऑन द बेसिस ऑफ शेप यू कैन क्लासिफाई प्रोटीन्स एज fibrous proteins and globular proteins. Proteins can be either fiber-like, means they are fiber-like, long fiber-like, or they are round proteins, circular, round shape. Amino acids are held in such a fashion that they form a 3D ball-like structure. Okay, इसका एग्जांपल है आपका कोलाजन फाइबर. We have seen it in the secondary structure. दूसरा इसका एग्जांपल है ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स और ग्लोबिन प्रोटीन्स. दोनों, ग्लोबिन is different than globulin. Okay, collagen fibers are present in skin. They are present in your connective tissues, areolar tissues. Location लिख लो, connective tissue में present रहता. उसी तरीके से keratin is also a fibrous protein. Actin, myosin, they are also fibrous proteins. They are long filamentous proteins. Actin, myosin. डाल दो यहाँ पे examples. Actin and myosin are involved in muscular contraction and relaxation. They are contractile proteins. Whereas keratin is structural protein, it is present in your hair, nails and your skin. Skin में भी रहता है keratin protein. Upper dead layer of skin में keratin protein present है. These proteins are fibrous. They are strong and rigid. Okay. Elastin डाल दो उसमें. Elastin protein is also there. It is present in your tendons, ligaments along with your collagen. Okay. Globular proteins, they are found in your blood, in your structural components. Cell के cell membrane में present रहेंगे. They are widely distributed in your body. Okay, ये हो गया शेप के हिसाब से. अगर उनका केमिकल नेचर हम देखते हैं, सो केमिकली प्रोटीन्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और दे कैन बी न्यूट्रल. इफ दे आर एसिडिक मीन्स दे हैव acid, they can donate hydrogen. Basic means they can accept hydrogen or they can donate OH groups. Neutral means they are neutral, they cannot show acid, they don't show reaction with acid or base. तो एसिडिक प्रोटीन्स क्या रहते हैं? इसके एग्जांपल है आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. बेसिक का एग्जांपल है हिस्टोन प्रोटीन्स एंड न्यूट्रल का एग्जांपल आपका ग्लूटेनिन या फिर ग्लूटेनिन इन व्हीट. ओके, इट इज न्यूट्रल प्रोटीन. तो नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक. ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब वो एसिड है. डीएनए, आरएनए इज आल्सो एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब इन एसिडिक डीएनए को क्या करते हैं? डीएनए इज लॉन्ग एंड इट नीड्स टू बी पैक्ड in the form of chromosome, in the form of chromatin material, so that DNA is coiled inside the nucleus and that packaging is done with the help of histone proteins. DNA is acid and hence we use basic proteins to pack that DNA. तो acid और base में अच्छे bond बन जाएंगे, packing अच्छी हो जाएंगी, hence histones are basic. DNA is acidic, histones are basic, DNA is acidic. याद रहेगा. Okay, let's see next type. This is the important classification of proteins on the basis of their structure. On the basis of the structure, the different classifications on the basis of these things, and these are the types of protein. Structure के हिसाब से तीन types बनेंगे: simple proteins, conjugated proteins, and your derived proteins. Simple, conjugated, and derived proteins. Simple proteins are made up of only chain of amino acids purely. Purely क्या रहेंगे? उसमें amino acids रहेंगे, उसमें कोई भी मेटल वेटल दूसरी कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ amino acid. ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनाइन, प्रोलिन वगैरह इस तरीके से सिर्फ amino acids ही प्रेजेंट रहेंगे. उसको आप ब्रेक भी किए so you will get only amino acids, purely made up of amino acids. Okay, for example albumin protein
present distributed widely. It may be egg albumin present in the egg. It may be serum albumin present in blood. Okay, leg albumin, लेग एल्ब्यूमिन बोल के एक रहेगा लेग्यूम्स में, आपके पल्सेस में, दाल में भी रहता अल्ब्यूमिन प्रोटीन. जहां जहां आप प्रोटीनस चीजें खाएंगे वहां वहां अल्ब्यूमिन प्रोटीन अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है. बट ऑल दैट अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स दे आर सिंपल प्रोटीन्स. दे आर मेड अप ऑफ ओनली, प्योरली मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स. ओके, अल्ब्यूमिन. दूसरा एग्जांपल आपको देता, फॉर एग्जांपल ग्लूटेनिन ऑफ व्हीट, जियाटिन ऑफ मेज, जियामेज अपने मक्का, आपका जो कॉर्न रहता उसके अंदर जियाटिन, ZEATIN, ग्लूटेनिन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट. ऐसा मत समझो व्हीट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते, व्हीट में प्रोटीन भी रहता एंड दैट प्रोटीन इज ग्लूटेनिन. ड्यू टू दैट इट मेक्स इट स्टिकी. जब आप गेहूं का आटा, अपना जो फ्लोर रहेगा गेहूं का, अपन उसका जब अपन पानी डाल के उसका घोल बनाएंगे, अब डो बनाएंगे, जब उसका पूरा बैटर बना लेंगे तो वो टाइम पे जब वो स्टिकीनेस आती है आटे में, दैट इज ड्यू टू ग्लूटेनिन. ओके, जियाटिन मेज में भी वैसा ही रहता. मेज को अगर आपने, कॉर्न पाउडर को अगर आपने पानी डाल दिया और उसको आप हाथ से मार सकते, सॉलिड हो जाता और वो स्टिकी रहता थोड़ा सा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जियाटिन. ठीक है, अल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन एग, ब्लड सेरम, एग ब्लड सेरम. ओके, प्लाज्मा में रहता, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता, अलग अलग जगह पे रहेगा, लेग्यूम्स में रहेगा. जितने भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है वहां पे आपको लेग्यूमिनस प्रोटीन में आपको अल्ब्यूमिनस प्रोटीन मिलते हैं. ठीक है, सीड्स में भी रहता, कैस्टर सीड वगैरह. देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. सिंपल समझा बेटा, सिंपल इज मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, मतलब इसमें और कोई चीज नहीं. लेकिन कॉन्जुगेशन मतलब क्या? कॉन्जुगेशन मींस ज्वाइन होना, जुड़ना. किसको जोड़ना? अमाइनो एसिड की चेन, उसके साथ में एक नॉन प्रोटीनस पार्ट आप अटैच कर दो. Means it consists of, these are the proteins which are made up of amino acids along with some non-proteinous part, and that non-proteinous part is known as prosthetic group. कौन सा ग्रुप? Prosthetic group. Non-proteinous such as your examples में टाइप्स आ जाएंगे, phosphoproteins. phosphoproteins नाम से समझ रहा है, प्रोटीन्स है, लेकिन उसके अंदर और एक कौन सा ग्रुप है एडिशनल? फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट प्लस प्रोटीन. अब ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज द अमाइनो एसिड प्रोटीन मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, बट उसके बीच में कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है. PO4 3 माइनस ग्रुप, इधर से एक बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड गए हैं. इधर एक अमाइनो एसिड की चेन, इधर अमाइनो एसिड की चेन, इधर से अमाइनो, मींस लाइक दिस इज नॉट अ प्योर प्रोटीन. This protein has a phosphoric acid or phosphate group in it. तो यहाँ पे एक एडिशनल नॉन प्रोटीन फॉस्फोरस आ गया. अपने प्रोटीन्स में फॉस्फोरस नहीं रहता, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस एडिशनल आ गया. तो इसकी वजह से अब ये सिंपल प्रोटीन नहीं बचा, अब ये कॉन्जुगेटेड होगा, क्योंकि इसमें दूसरी चीज कॉन्जुगेट हो गई, जुड़ गई. समझ में आ रहा है मीनिंग? So the proteins having amino acids, simple proteins along with non-proteinous part, and what is it known as? This non-proteinous part is known as prosthetic group. यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? फॉस्फेट ग्रुप. अब आप एग्जांपल में बोलता, आप उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स फटाफट नोट करते जाओ. फॉस्फो के बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइको मतलब शुगर, सो हियर शुगर प्लस प्रोटीन, राइट. लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन, मतलब ऑयल वगैरह रहेंगे उसमें और प्रोटीन रहेंगे. Glycoproteins are present in cell wall, cell membrane. These are lipoproteins are also present in cell membrane. Glycoproteins are also present on the outer covering of some viruses, जैसे कि HIV वायरस, उसमें glycoproteins बाहर रहते. Lipoproteins are present in cell membrane of bacteria. We have seen it. Okay, prokaryotic cell. वैसे ही रहेंगे आपका लाइपोप्रोटीन के बाद. अगला एग्जांपल ऐड कर लो, फॉस्फोग्लाइको लाइपो. मेटालोप्रोटीन मतलब कौन रहेगा इसमें प्रोटीन के साथ में? प्रोस्थेटिक ग्रुप. हु इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप हियर? अ मेटल आयन, फॉर एग्जांपल फेरिटीन. इसमें फेरस मतलब आयन रहेगा. किसी में जिंक रह सकता, किसी में निकेल रह सकता, कॉपर रह सकता, बस कोई तो भी मेटल डाल दो उसमें. ठीक है, अगला एग्जांपल यहां लिख रहा हूं. मेटालोप्रोटीन के बाद क्रोमोप्रोटीन्स.
क्रोमो प्रोटीन्स, मतलब क्रोमा मतलब कलर और प्रोटीन्स मतलब ये कोई ना कोई पिगमेंट रहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स है आपके, फॉर एग्जांपल क्रोमो प्रोटीन्स के एग्जांपल आपके हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स। We are seeing the structure of hemoglobin. Hemoglobin consists of 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta chains, and there is centrally an iron metal or ion is present, that is called heme group. Heme, इसमें देखो दो वर्ड, heme और globin. Globin is globular protein और बीच में iron। तो ये जो ग्लोबुलर क्यों बनता है, क्योंकि इधर से एक चेन, इधर से एक चेन, इधर से एक चेन और इधर से एक चेन, तो इस तरीके से सर्कुलर प्रोटीन तैयार होता है। और बीच में कौन है, हिम ग्रुप। तो ये प्रोस्थेटिक पार्ट है, ये नॉन प्रोस्थेटिक पार्ट। साइटोक्रोम में भी Fe प्रेजेंट रहता, जिसके से कलर आता रेड, इसका भी रेड, इसका भी रेड, बोथ आर रेड कलर्ड पिगमेंट्स एंड दे आर रेड ड्यू टू एंड हेंस वी कॉल देम एज क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमा मतलब कलर, प्रोटीन्स मतलब दे आर हैविंग प्रोटीनस पार्ट विद नॉन प्रोटीनस आयरन, मेटल और अदर ग्रुप, हिम ग्रुप। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऐड कर लिया HB और इसमें ये एग्जांपल साइटोक्रोम। ओके, वैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स, एज द नेम सजेस्ट, न्यूक्लियो मींस देयर इज न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि अपने राइबोसोम में रहते राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, these are present in your RNA। तो वहां पे की जो प्रोटीन्स है, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA प्रेजेंट रहता है उसमें। प्रोटीन इज डिफरेंट, RNA इज डिफरेंट। सो प्रोटीन पार्ट में नॉन प्रोटीनस पार्ट RNA means it becomes a conjugated protein. Okay, so this is your ribonucleoproteins. These are the examples of conjugated protein. एक ही बात याद रखो यार, सिंपल प्रोटीन में अमाइनो एसिड ही रहेंगे, दूसरे कोई भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब कोई और मेहमान आके बैठ जाएगा, वहां पे कोई मेटल बैठ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, लिपिड, कोई और घुस के बैठ जाएगा उस स्ट्रक्चर में, तो वो प्रोटीन अब प्योर प्रोटीन नहीं बचेगा, अब वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस। एंड लास्टली द थर्ड टाइप, डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसके ऊपर से एक थर्ड टाइप निकालो, इफ यू हैव नोटेड दिस। आगे का एक लास्ट टाइप डिराइव्ड प्रोटीन्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ डिराइव्ड? अपन डिराइव्ड का मीनिंग देखेंगे। डिराइव्ड प्रोटीन, फर्स्ट देखे अपन ने सिंपल, फिर कॉन्जुगेटेड, अब तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव मतलब बनाना, किसी चीज से डिराइव करे वाले, निकाले वाले। तो किससे डिराइव करते हैं उनको? सो डिराइव्ड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन और डीनेचुरेशन ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। किसको ब्रेक करने का, किसकी तोड़फोड़ करने की, किसको ब्रेक डाउन करने का? ब्रेकडाउन और डीनेचुरेशन ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। एग्जाम्पल देता कैसे, जैसे कि आपने अपना फॉर एग्जाम्पल एग, जब आप एग को, अब एग कौन सा, ऑमलेट बनाने का है फॉर एग्जाम्पल। चलो ठीक है, अपन ऐसा कंसिडर करते हैं वेजिटेरियन से सारे के सारे, कोई को पसंद, किसी को पता नहीं होगा, पसंद छोड़ो, पता ही नहीं होगा एग कैसा बना। दूध, मिल्क, तो जब आप मिल्क रहता अपना, तो अपन बर्तन में उसको गर्म करने के लिए जब लेते, मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता? मिल्क प्रोटीन इज कैजिन, इट इज कॉल्ड मिल्क प्रोटीन। लिख के रख लो MCQ, मिल्क प्रोटीन इज कैजिन। ओके, मिल्क प्रोटीन का क्या होता? इसके अंदर एक मेटल आयन प्रेजेंट रहता, इसकी वजह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ओके, इसमें फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन। डाल दो उसको फॉस्फोप्रोटीन में, इट इज द फॉस्फोप्रोटीन। जब हम दूध रहता, जब आप मिल्क जब अपन निकाल के लाते, एक बर्तन में कच्चा दूध रहता, उसको गर्म करने के रखते, तब क्या होता? व्हेन यू बॉइल दैट मिल्क, व्हेन यू हीट इट, सो एट दैट टाइम दिस कैजिन अबव 45 डिग्री सेल्सियस, कितने तापमान के ऊपर? 40-50 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर, दिस मिल्क प्रोटीन अंडरगोस डीनेचुरेशन। व्हेन यू बॉइल इट, सो दिस कैजिन प्रोटीन स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। अब रहता कैसा प्रोटीन? प्रोटीन इज हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लूप्स रहेंगे उसमें, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था।
तो जब इसको अपन गर्म करते तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते, तो यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे थे, अल्फा हेलिक्स वगैरह, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते ड्यू टू हीटिंग, उसको गर्म करने से बॉन्ड्स ब्रेक होते, और ये जो ऐसे अमाइनो एसिड्स की चेन्स है वैसे अलग अलग हो जाती। समझ रहे कि क्या होगा? when you heat above 45 degrees Celsius, so this conjugated protein, or you can write secondary, tertiary or quaternary structures of protein, so they undergo breakdown of hydrogen bonds, उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड यू गेट सिंपल प्रोटीन्स, ओके, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। अब ये तो हो गया अपना एग्जांपल कैजिन का, लेकिन कई बार क्या होता है, अब ये कैजिन नहीं बचेगा, अब इसका ब्रेकडाउन हो गया, अब कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स तैयार हो गए इसमें, some other types of proteins are now produced, and that proteins are called your derived proteins, क्योंकि अब वो कैजिन, प्योर कैजिन नहीं बचा, हमने उसका ब्रेकडाउन कर लिए, that breakdown process is known as denaturation. Remember this breakdown of hydrogen bonds is known as denaturation. We have done the breakdown of hydrogen bonds of this large protein, and hence we are getting simple proteins, but these are different now, and therefore these proteins are called derived proteins. अपन ने conjugated protein को break down करके derive करे ना उनको, तो इसके लिए अब उनको क्या बोलने का? derived proteins. The proteins that are obtained by breakdown of simple proteins or conjugated proteins, they are called derived proteins. जैसे कि हम कोई भी प्रोटीन खाते, हम अल्ब्यूमिन खा लेंगे, तुम्हारे खाने में कई प्रकार के प्रोटीन्स आते रहते, तो उन प्रोटीन्स को जब आपका स्टमक में जाएंगे, वो खाना आपका, स्टमक विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन दैट प्रोटीन्स, एंड दैट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन स्टमक। मैं डाइजेशन वाला डिराइव्ड का एग्जांपल दे रहा, योर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्टमक, into smaller protein units known as proteoses and peptones. ये देखो प्रोटीन्स है, ये बड़े बड़े प्रोटीन्स खाते हैं अपन। स्टमक में कौन सा एसिड रहता है? HCl, ओके, और एक कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जिनमें एक रहता पेप्सिन, ओके। सो ये जो दो चीजें हैं, HCl और पेप्सिन एंजाइम, ये क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन अपन खा रहे हैं, सो दैट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, लार्जर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन in presence of this material in stomach into proteoses. ये देखो प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स, कुछ फर्क है क्या? यस, देयर इज अ डिफरेंस। ये लार्ज प्रोटीन था, इसके टुकड़े हो गए। अगर ये 10,000 अमाइनो एसिड से बने वाला था, तो इसके फिर 5,000 और 5,000 के दो पीसेस हो गए, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग प्रोटीन्स में। Since these proteins are obtained by breakdown of a large protein, therefore these proteins are called derived proteins. You are deriving them from some other protein. Clear हुआ meaning? Simple protein समझ में है, conjugated समझ में है, and derived protein. Example of derived is proteoses and peptones. These are derived proteins. Okay. Now this is done. Examples of all proteins are done. आपको कुछ examples और ऐड कर लो, heparin वगैरह ढूंढ के निकालो कहाँ पे बैठेगा। heparin is present in blood. It is anticoagulant agent. It prevents coagulation of blood. heparin नीट वालों के लिए, बोर्ड वालों को जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिस इज डन। अपन अब लास्टली देख लेते फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स नोट करते चलो, मैं एग्जांपल्स आपको बोल दिया है, बस आपके सामने उनके फंक्शंस आते रहेंगे। एक फोटो आएगा, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ, आपको सिंपल है बेटा, मैं आप समझ सकते हैं आपकी मैं इसको क्यों इस तरीके से ले रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ सिंपल बिट। फंक्शंस तो आपको नाम से मैंने कई सारे बता दिए, जैसे कि कोलेजन आपको हीलिंग में हेल्प करेगा, इंजुरी के टाइम पे मैंने बोला था, तो वहां पे आपको मार लगने के बाद आपको मदद करेगा, प्लस इट फॉर्म्स योर स्ट्रक्चर, तो इस हिसाब से सिंपल है। केराटिन आपके हेयर बनाएगा, डेड सेल्स को कवर करेगा, आपको इम्यूनिटी देगा प्रोवाइड, तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस है प्रोटीन्स के। सो आई एम जस्ट गिविंग दैट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स।
ओके सो आपके सामने दो फोटोज आ रहे हैं बड़े बड़े, ओके फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है आपके सामने एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो एक्चुअली आपने है क्या, आप एक बार लिख के रख लो ये सारे फंक्शंस वीडियो पॉज करके। एंटीबॉडीज, रिसेप्टर प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स है, स्टोरेज प्रोटीन्स, एंडोर्फिन्स और योर पॉलीपेप्टाइड्स that are produced by your central nervous system, then contractile proteins, enzymes, structural proteins and transport proteins। है क्या कुछ इतने 8-10? अब इनके सबके एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिया। लेट्स सी वन बाय वन। तो पहला वाला आपके सामने एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मींस इम्यूनो एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन मतलब लार्ज प्रोटीन रहेगा और इम्यूनो मतलब उसमें कोई और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो आईजी अपने जो रहते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई स्मॉल जी। ओके इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज जो रहते हैं दे प्रोवाइड यू विथ इम्यूनिटी। तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, वायरस जब एंटर करता है, बैक्टीरिया जब एंटर करते हैं, अपनी बॉडी उसको मारने के लिए कुछ तरीके से कुछ सिस्टम वर्क करता तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम, एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। दैट एंटीबॉडीज दे आर एक्चुअली योर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, दे प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन। ओके सो दे आर प्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन्स। ओके so antibodies are protective proteins, they provide you immunity। दूसरा दिया है आपको रिसेप्टर प्रोटीन्स। so they are present on the cell membrane, they are present on the cell membrane means either they are present on your various membranes, various mucous membranes like your nose, नाक के अंदर रहेंगे, ये like your tongue यहाँ पर present रहेंगे वो प्रोटीन। they will receive the sense of various senses, sense organs, जैसे कि स्मेल लेने के लिए आपको पता चलता है कौन सी स्मेल है, आपकी आंखों में प्रेजेंट रहेंगे, वो आपके फोटो रिसेप्टर्स रहेंगे, वो आपके लाइट का आपको सेंस देंगे। मींस रिसेप्टर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स एंड दे विल हेल्प इन रिसीविंग द सेंसेस स्टिम्युलस। स्किन में भी प्रेजेंट रहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, क्योंकि टेम्परेचर का, प्रेशर का या फिर कोई केमिकल गिर गया, पानी लग गया आपके हाथ पे, तो उसका रिसेप्शन आपको कैसे पता चलेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट रिसेप्टर प्रोटीन्स। मीन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस stimulus, either smell, hearing or taste or vision। ठीक है रिसेप्टर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है आपके सामने आया वाला हार्मोनल प्रोटीन्स। तो जैसे कि आपको इंसुलिन बता दिया था मैंने फोटो, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ए और उसके अंदर बी चेन रहती, 21 और 30 अमाइनो एसिड्स कुछ थे उसके अंदर, आपको फोटो 30 और 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे। सो दैट इंसुलिन ऐसे कुछ और हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स अपनी बॉडी के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। सो दे आर इन प्रोटीन्स दैट आर हार्मोन्स, दे एक्ट एज हार्मोन्स। ठीक है नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने स्टोरेज प्रोटीन्स। तो मतलब सीधा समझ में आ रहा है स्टोर्ड होंगे कहीं ना कहीं। तो जैसे कि अल्ब्यूमिन आपको बता दिया था, अल्ब्यूमिन एग में स्टोर हो रहा, पल्सेस में, दालों में, अपने सीड्स में स्टोर होगा अल्ब्यूमिन, कैस्टर सीड्स में वगैरह। तो इस तरीके से ये जो सीड्स है दीज आर अल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है देन नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है आपका फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आ रहा है एंडोर्फिन्स। तो ये आपके ब्रेन तैयार करता है ये प्रोटीन्स को। एंडोर्फिन्स आ रहा है वर्ड स्पेलिंग। सो एंडोर्फिन्स आर दीज आर द प्रोटीनस पॉलीपेप्टाइड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन एंड दे गिव अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। आपको अच्छा लगता है जब आपका ब्रेन तैयार करता है, आपको एक वेलबींग वाली फीलिंग आती है, दे गिव अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। आपको अच्छा लगता है यार, हाँ थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, कामनेस लग रही। तो ये एंडोर्फिन्स रहते हैं। ओके एंडोर्फिन्स बहुत काम के प्रोटीन्स रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार करती है ये प्रोटीन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है एंडोर्फिन्स। ओके देन नेक्स्ट प्रोटीन्स आर योर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अभी आपको बताया मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में एक्टिन, मायोसिन, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। मसल्स में प्रेजेंट रहेंगे, दीज आर फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल्स, एक्टिन, मायोसिन। ओके देन नेक्स्ट प्रोटीन आ रहा है आपके सामने योर एंजाइम्स। एंजाइम्स व्हाट आर एंजाइम्स, वी विल डील इट इन डिटेल विथ एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अपने को अलग से देखना ही है एंजाइम्स का पूरा। बट एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे कैटालाइज द रिएक्शंस। जैसे कि ये रिएक्शन पेप्सिन इज अ प्रोटीन, इट कैटालाइजेस दिस रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम क्या रहता? इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन एग्जाम इन योर रिएक्शन, इट इज रिलीज्ड अनयूज्ड, वो वापस बच जाएगा, बाकी रिएक्शन पूरी हो जाएगी, बट वो एट द एंड वापस से दूसरी रिएक्शन कैरी आउट करेगा, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। So there are enzymes, most of the enzymes are proteins but all proteins are not enzyme। ये लाइन मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा, बट लिख लो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स।
ओके, नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट टू स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जैसे कि अभी देखे अपन ने स्ट्रक्चर बनाते कोलेजन, केराटिन, दे फॉर्म योर बॉडी स्ट्रक्चर्स। ओके, हेयर बनाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स केराटिन, मसल्स में भी स्ट्रक्चर बना रहे आपके लाइपोप्रोटीन्स, glycoproteins, they are involved in formation of structures like your plasma membrane. Okay, and at the end you are given with transport protein. So transport में help करने वाले proteins, जैसे कि मीनिंग सब शब्दों पे समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ट्रांसपोर्ट किस चीज का? जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2। जाते टाइम ऑक्सीजन लेकर जाएगा वो ब्लड में, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और रिटर्न में आते टाइम CO2 जमा करके लाएगा पूरे लंग्स में वापस से, वही CO2 अपन बाहर एक्सेल कर देंगे। सो हीमोग्लोबिन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, एंड एट लास्ट वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। अगर कोई और एग्जांपल जैसे कि GLUT4 प्रोटीन, आपको एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, देखिए प्रोटीन्स के बाजू में, ये टेबल के अंदर आपको GLUT4, नीचे बहुत सारे प्रोटीन्स के एग्जांपल है, कोलेजन वगैरह, आपको रीड करना है ये बाय योर ओन। ओके, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स के एग्जांपल है आपको, कोलेजन, एंटीबॉडीज, रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो और एट लास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में GLUT4 प्रोटीन एकदम आखिरी में दिया है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विद इन दी सेल, है क्या? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विद इन दी सेल। तो हम जो ब्लड से ग्लूकोज जब सेल्स तक पहुंचेगा तो वो सेल के अंदर कैसे आएगा? दिस GLUT4 प्रोटीन विल हेल्प इन एंट्री ऑफ दैट प्रोटीन इनटू दिस सेल। ये एमसीक्यू 2019 नीट में आके गया वाला है, राइट डाउन देयर इन योर एनसीईआरटी नीट 2019, नीट 2019। क्या? GLUT4 आपको एमसीक्यू में पूछे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू दिस सेल। तो एंट्री कौन करने देता? एंट्री करने देता GLUT4। ऑप्शंस थे GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। ग्लूट मतलब क्या? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4। ये नीट 2019 में आके गए वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज को आने देगा ये प्रोटीन, हेंस इट विल बी प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पे दूसरे प्रोटीन जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, याद आ रहा है क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वैसे ही ये भी प्रेजेंट रहता सेल मेम्ब्रेन पे, और फिर प्रोटीन में शुगर को अंदर बाहर अंदर आने देता, एंट्री करने देता, एग्जिट नहीं, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू दी सेल। सो इस तरीके से लास्ट पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा। तुम्हारे सोडियम पोटेशियम पंप्स रहते, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दे हेल्प इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ योर सोडियम पोटेशियम, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। So like this there are many transport proteins, hemoglobin, GLUT4 and other protein channels present in your cell membrane. Okay, तो इस तरीके से प्रोटीन्स के फंक्शंस यहाँ पे भी खत्म होते हैं। सब चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किया। बड़े बड़े क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है पूरी चीजें यहाँ पे अपने कवर की, और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें सारी कवर की। ओके, सो वी हैव डन विद द प्रोटीन पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सब हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया प्रोटीन। विल स्टार्ट विद लिपिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, इन अनदर बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज योर लिपिड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।